Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I'm going to teach you history 10th chapter, Armed Revolutionary Movement. Okay, so yesterday we had already started the starting part of this chapter. So today I'm going to start from here. Do you know? Swatantraveer Savarkar. Swatantraveer Savarkar was sentenced to 50 years of rigorous imprisonment in at Andaman. Yes, so here Swatantrata means Swatantrata Veer Savarkar, right? He is a person who founded Abhinav Bharat Abhiyan, right? So he was in a imprisonment at Andaman jail, okay, for 50 years. He was there for 10 years. In his autobiography Majhi Janmathep, he wrote down his experience of the terrible days in Andaman. Yes, so here in his imprisonment time, he wrote his own autobiography, and the name of his autobiography was Mazi Janmathep. Okay, so in that book, he had written down the experience, whatever experience he faced in that jail, that he had noted down in his autobiography. Okay, so here in Andaman jail, स्वतंत्र वीर सावरकर हैड पास 10 years. ओके, उनकी जो इम्प्रीजमेंट थी, सजा थी, वो कितनी थी? सेंटेंस वो 50 years की थी, बट ही हैड पास देयर ओनली 10 years. Later, government took him at to Ratnagiri and detained there. Yes, so after that, the government, means British government, had shifted him in Ratnagiri jail. Okay, there Savarkar started many social movements such as removal of caste differences, removal of untouchability. Yes, so here means in Ratnagiri, Swatantraveer Savarkar had started so many social movement. उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे? Social movement start किए थे, right? For removal of caste differences, जो caste differences की जो problems थी, untouchability की जो problems थी, फिर common dining, purification of language, ये सारी चीज़ों को remove करने के लिए उन्होंने movement start किए थे. Okay. He was a great writer. He was the president of Marathi Sahitya Sammelan at Mumbai in 1938. Yes, he was a great writer. Means obviously he was very popular writer of that time. And besides that, he was also a president of Marathi Sahitya Sammelan. मराठी साहित्य सम्मेलन जो कि मुंबई में हुआ था 1938 में, तो वो वहाँ के क्या थे? प्रेसिडेंट थे. The government came to know about the activities of Abhinav Bharat. Therefore, the government arrested Babarao Savarkar. He was sentenced to life imprisonment. Yes. So here what happened? जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन लोगों को पता चल गया था अभिनव भारत की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने की, राइट. सो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑर्डर पास किया कि वो जो बाबा राव सावरकर है उनको क्या कर ले? अरेस्ट कर दे, एंड उनको सेंटेंस मीन्स सजा दे दी जाए, इम्प्रिजमेंट में कैदी बना दिया जाए. ओके, सो एज अ रिवेंज ऑफ दिस पनिशमेंट अ यूथ नेम आनंद लक्ष्मण Kanhere killed Jackson, the collector of Nasik. Yes. So now the other people who was also a member of Abhinav Bharat movement. Okay. So what they did, they take had revenge. उन्होंने क्या लिया? रिवेंज लिया. उन्होंने जो पनिशमेंट इनको दिया गया था बाबूराव सावरकर को, है ना, तो उसका रिवेंज उन्होंने कैसे लिया? उन्होंने मतलब एक यूथ नेम है एक पर्सन का, आनंद लक्ष्मण. तो उन्होंने क्या किया था? जो जैक्सन नाम के कलेक्टर थे नासिक डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने उनको किल कर दिया था, मार दिया था. The government started arresting all those people who were connected with Abhinav Bharat organization. Yes, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? जो जो पर्सन ये ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है उन सबको अरेस्ट कर लिया था. The murder of Jackson was linked with स्वतंत्रता वीर सावरकर by the government. He was arrested and put under trial. Yes, फिर जो मर्डर जैक्सन का जो मर्डर हुआ था, तो जो गवर्नमेंट उनको क्या पता चली थी? क्या बात पता चली थी? मतलब ये जो मर्डर हुआ है जैक्सन का, तो उसका कहीं ना कहीं से लिंक किसके साथ है? स्वतंत्रता वीर सावरकर के साथ है ना. तो इसकी वजह से उन्होंने उनको भी क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था अंडर ट्रायल. द कोर्ट ऑर्डर हिम राइगोरियस पनिशमेंट फॉर 50 years. यस, तो ये देखो इसके वजह से उनको 50 years की सजा दी गई थी. ओके, राइगोरियस मीन बहुत डेंजर जैसी पनिशमेंट दी गई थी. ओके, नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. ओके,
After the partition of Bengal, the outrage against British became more severe. In place of local rebellion, comprehensive revolutionary movement started rising at national level. Yes, so here after the partition of Bengal, मतलब जो बंगाल का पार्टीशन हो गया था, तो जो मतलब जो भी पीपल्स जो रेबिलियंस है, लोकल जो रेबिलियंस है, राइट, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट फ्रीडम, है ना, फ्रीडम के लिए। एंड दे वर ऑल्सो यूजिंग रिवोल्यूशनरी, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किया था, वो उसको भी मतलब वहाँ पे उन लोगों ने स्टेट लेवल के पर स्टार्ट कर दिया था इन वेरियस पार्ट। ये सो यस, तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो आउटरीच चल रहा था, तो वो कैसा हो गया, थोड़ा सेवर हो गया था। सो इन प्लेस ऑफ लोकल रेबिलियन कॉम्प्रिहेंसिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड राइजिंग अप नेशनल लेवल। ये जैसे कि पहले लोकल रेबिलियन थे, मतलब जो पर्टिकुलर जो एरिया में लोग रहते थे, तो वो रिबेल करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, राइट। लेकिन अब क्या हुआ था, अब जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो स्टार्ट हो गया था यहाँ पर, ओके, और वो भी कौन सी लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हो गया था। In various parts of the country, the youth inspired by revolutionary thought started establishing their secret organization. Yes, अब जो मतलब जो वेरियस पार्ट्स थे हमारी कंट्री के, तो वहाँ के जो यूथ थे, मतलब जो यंगस्टर्स थे, तो वो इंस्पायर हो रहे थे। किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे थे? जो रिवोल्यूशनरी जो थे, जो रिवोल्यूशनरीज जो थे, उनकी जो थॉट थे, उनसे इंस्पायर हो रहे थे। और जो वो ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश कर रहे थे, उससे वो इंस्पायर हो रहे थे। To keep control over British officers, to loosen the government machinery, to wipe out the fear in the minds of Indian regarding the British government. Yes, obviously अगर हमको ब्रिटिश की गवर्नमेंट के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनके ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो गवर्नमेंट है, पहले तो उन लोगों को, मतलब हम लोगों को क्या करना है, टू लूजन द गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको हमको लूज करना होगा। सेकेंड, टू वाइप आउट द फियर, मतलब जो हमारे माइंड में वो टाइम पे जो पीपल्स, उनके माइंड में जो डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर, तो वो हमको वाइप आउट करने पड़ेंगे, उनके दिमाग से निकालने पड़ेगा। ओके, ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, ओवर थ्रोइंग द ब्रिटिश रूल वेयर सम ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, और ये सारी जो चीज़ें थी, ये क्या थी, एक मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, इन बंगाल और रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अनुशीलन समिति। यस, अब देखो जो यहाँ पे जो मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना, तो उसको क्या बोला जाता था, अनुशीलन समिति बोला जाता था। ओके, मीन्स अनुशीलन समिति वॉज एक्टिव, means in Bengal a revolutionary organization called Anushilan Samiti. Anushilan Samiti had more than 500 branches. Yes, अब देखो इसकी कितनी सारी ब्रांचेस थी। जैसे कहीं पे कोई चीज़ स्टार्ट होती है, तो उसके अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग सिटी में कैसे होती है, उसकी ब्रांच भी स्टार्ट होती जाती है। तो ये जो अनुशीलन समिति थी, तो इसकी 500 ब्रांचेस थी ऑल ओवर आवर कंट्री। ओके, सो बरिंद्र कुमार घोष, ब्रदर ऑफ औरोबिंदो घोष, was the chief of this organization. Yes, अब देखो जो बरिंद्रनाथ कुमार घोष है ना, ये किसके ब्रदर थे, औरोबिंदो घोष के ब्रदर थे। तो ये क्या थे, ये चीफ थे ये ऑर्गेनाइजेशन के, अनुशीलन समिति, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसके ये चीफ थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव काउंसिल एंड गाइडेंस फ्रॉम औरोबिंदो घोष। Yes, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसको गाइडेंस और काउंसलिंग कौन कर रहा था, औरोबिंदो घोष कर रहे थे। ओके, और औरोबिंदो घोष के जो भाई थे, वो इसके क्या थे, चीफ थे। The Anushilan Samiti had a bomb manufacturing center at Maniktala near Kolkata. Yes, अब ये जो अनुशीलन समिति थी, राइट, तो इन लोगों की बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, मतलब ये लोग क्या करते थे, बॉम्ब मैन्युफैक्चर करते थे। कहाँ पर, मनिकतला में, जो कि कहाँ पे था, कोलकाता में। In 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chaki, member of Anushilan Samiti, planned a kill a judge named Kingford. यस, अब अनुशीलन समिति क्या मैन्युफैक्चर करती थी, बॉम्ब मैन्युफैक्चर करते थे। कहाँ पे हम लोग, मनिकतला, जो कि कोलकाता में। तो 1908 में क्या हुआ था, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला शक्ति थे, तो ये दोनों भी क्या थे, अनुशीलन समिति के मेंबर थे, राइट। तो इन्होंने क्या प्लान किया था कि जो जज थे किंग्स फोर्ट, है ना, तो उनको क्या करेंगे, किल करेंगे, उनको मारेंगे।
ओके, बट द व्हीकल ऑन विच दे थ्रू द बॉम्ब वाज नॉट द वन कैरिंग किंग फोर्ट। यस, अब इन लोगों ने जो व्हीकल के मतलब इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होंगी कि ये व्हीकल से ये जज ये एरिया से पास होने वाले हैं, तो उन्होंने वो न्यूज़ के वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वो व्हीकल के ऊपर क्या किया, बम थ्रो किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, वो व्हीकल में क्या जो जज थे किंग्सफोर्ड वो नहीं थे। टू इंग्लिश वुमेन वेयर किल्ड इन दिस अटैक। और वो व्हीकल में कौन था, टू इंग्लिश वुमेन थी जो कि ऑब्वियसली बॉम्ब के अटैक की वजह से वो दोनों क्या हो गई थी, किल हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी शूट हिमसेल्फ विद अ बुलेट सो दैट ही विल नॉट फॉल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। फिर प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, शूट कर लिया था बुलेट से, ताकि वो ब्रिटिश के हैंड में ना जाए। Khudiram Bose was catched by the police. During the investigation, the police got information about the working of Anushilana Samiti. अब खुदीराम बोस वो भी उनके साथ ही थे ना, प्रफुल्ल चाकी के साथ, ये दोनों ने प्लान किया था जज को शूट करने का, जज के ऊपर ब्लास्ट करने का। बट जो प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, शूट कर लिया था बुलेट से, ताकि वो मतलब क्यों किया था उन्होंने, उनको ब्रिटिश पुलिस के अंडर में नहीं जाना था। और जो खुदीराम बोस थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर ली थी, कैच कर ली थी। और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या कन्फेस किया, उन्होंने मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास अनुशीलन समिति की, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने इनको दे दी थी। दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द पीपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ऑब्वियसली उनको एक क्या मिल गया, प्रूफ मिल गया। तो प्रूफ मिलने के बाद ये लोगों ने क्या किया, मतलब पुलिस ने क्या किया, उन लोगों ने जो मेंबर्स थे अनुशीलन समिति के, तो उन लोगों को उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। औरोबिंदो घोष वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। ये सब औरोबिंदो घोष जो कि काउंसलिंग करते थे ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग का और क्या काम करते थे, वो गाइड करते थे लोगों को, तो इनको भी क्या कर दिया था, अरेस्ट कर दिया गया था। बट द गवर्नमेंट वॉज अनसक्सेसफुल इन लिंकिंग हिम टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉम्ब एंड हेंस द कोर्ट सेट हिम फ्री। यस, लेकिन देखो फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी। किस चीज़ में, जो लिंक था उनका, किस चीज़ से लिंक था, जो मतलब उनका क्या सीक्रेट था कि वो मैन्युफैक्चर करते थे बॉम्ब, है ना। तो ये चीज़ को लोग प्रूफ नहीं कर पाए थे और फिर कोर्ट ने उनको क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था, रिलीज कर दिया था। अदर मेंबर वे आर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन जो अदर मेंबर थे उन लोगों को सजा दी गई थी बहुत लंबे टाइम के लिए कैदी की। राजबिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल spread the network of revolutionary organization outside Bengal। अब ये जो 2 पर्सन थे, राजबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, है ना, तो ये लोगों ने क्या किया था, एक नेटवर्क स्प्रेड किया था रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कहाँ पर, बंगाल के बाहर में। द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी वर्क वेयर सेट अप एट पंजाब, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। अब इनका जो रिवोल्यूशनरी का नेटवर्क था, तो वो कहाँ पे वर्क करता था, मतलब वो कहाँ पे सेटअप किया गया था, पंजाब में, दिल्ली में एंड उत्तर प्रदेश में। राज बिहारी बोस एंड हिज एसोसिएट मेड अ डेयरिंग एक्ट ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब एट द वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। यस, अब देखो उन्होंने जो राज बिहारी बोस के जो असिस्टेंट्स हैं उन लोगों ने एक डेयरिंग के साथ क्या किया, एक टास्क किया उन्होंने, जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग के, तो इनके ऊपर क्या किया था, बॉम्ब अटैक किया था, इनके ऊपर बॉम्ब थ्रो किया था। बट ही गॉट सेव फ्रॉम द अटैक। लेकिन देखो वापिस से यहाँ पे क्या हुआ था, जो लॉर्ड हार्डिंग थे वो ये अटैक से क्या हो गए थे, सेव हो गए थे। द रिवोल्यूशनरी वर्क वॉज कैरिड आउट इन मद्रास प्रोविंस एज वेल। जैसे देखो अलग अलग स्टेट में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, है ना, रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थे वो चल रहे थे। जैसे अभी यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राइट। तो वैसे ही अब ये मद्रास प्रोविंस में भी स्टार्ट हो गया था इसका वक्त। वंची लैयर अ रिवोल्यूशनरी किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम ऐश। यस, अब ये जो मंची लैयर थे ना, ये भी क्या थे, एक रिवोल्यूशनरी थे। तो उन्होंने किसको किल कर दिया था, ब्रिटिश ऑफिसर को किल किया था जिनका नेम था ऐश। लेटर ही शूट हिमसेल्फ विद अ बुलेट एंड सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ। अब उनको मारने के बाद, उनको किल करने के बाद उन्होंने अपने आप को वापस शूट कर दिया था और अपनी लाइफ को उन्होंने क्या कर दिया था, हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए सेक्रीफाइस दे दिया था अपनी लाइफ का। ओके, नाउ इंडिया हाउस। The revolutionary work in India received assistance from Indian revolutionaries staying abroad। अब ये जो revolutionary work था, है ना, the revolutionary work in India receive assistance, मतलब ये जो वर्क हमारी कंट्री में चल रहा था revolutionary work, तो वो कहाँ से असिस्ट हो रहा था, इंडियन रिवोल्यूशनरी से, जो कि कहाँ पे रह रहे थे, अब्रॉड में रह रहे थे, अदर कंट्री से, अदर कंट्री में रह रहे थे। मतलब देखो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे वो, इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, लेकिन वो कहाँ थे, अदर कंट्री में थे, और वो वहाँ से असिस्ट कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में जो लोग रह रहे थे उनको।
India House in London was an important center which provided more which provided for such kind of assistance. Yes, अब जो इंडिया हाउस था कहाँ पे, लंदन में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर था जो क्या प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड फॉर सच काइंड ऑफ असिस्टेंस. ओके. पंडित श्यामजी कृष्णा वर्मा, an Indian patriot, had established. अब यहाँ पे जो पंडित श्यामजी कृष्णा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये क्या थे, एक इंडियन पैट्रियट थे जिन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, इंडियन हाउस स्टैब्लिश किया था इंग्लैंड में. ओके. थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूथ were given scholarship for higher education in England. अब ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखो वो क्या काम करते थे, जो यंगस्टर्स है ना, जो यंगस्टर्स है उन लोगों को क्या दी जाती थी, स्कॉलरशिप जाती थी, दी जाती थी, और वो स्कॉलरशिप के थ्रू वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे जाते थे, इंग्लैंड में जाते थे, क्योंकि ये इंडियन हाउस जो है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में था. Satyaveer Savarkar received such scholarship. Madam Kama raised the issue of Indian independence at the World Socialist Conference held at uh, Stuttgart in Germany. Yes, अब जो स्वतंत्रवीर सावरकर जो भी कहा गए थे, इंग्लैंड में गए थे, तो इनको भी क्या रिसीव हुई थी, ये वाली स्कॉलरशिप रिसीव की गई थी, है ना, मिली थी, तो इसके लिए अपने हायर एजुकेशन के लिए वहां पे गए थे इंग्लैंड में. एंड मैडम कमा रेज द इशू, मतलब मैडम केमा ने क्या किया था, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस का जो इशू चल रहा था उसे उन्होंने कहाँ पे रखा था, वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में रखा था, जो कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में हुई थी. इन द सेम कॉन्फ्रेंस शी अनफर्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया, और वही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया था, हमारी कंट्री का जो फ्लैग था उसको अनफर्ल किया था, मीन्स लगाया था, लहराया था वो. Another revolutionary associated with India House were youth named Madan Lal Dhingra. Yes, अब ये जो अदर जो रिवोल्यूशनरी थे, हैं, अदर जो रिवोल्यूशनरी एसोसिएटेड थे, जो इंडिया जो कहाँ थे, इंडिया हाउस के साथ थे, तो उनके कौन थे वो, नेम उनका नेम क्या था, मदन लाल ढींगरा. एंड उन्होंने क्या किया था, ही किल्ड कर्जन वैले, अ ब्रिटिश ऑफिसर, ड्यू टू विच ढींगरा वाज हैंग टू डेथ. यस, तब इन्होंने क्या किया था, मदन लाल ढींगरा ने, इन्होंने कर्जन वैले को किल किया था, जो क्या थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे. अब उनको किल करने के बाद ऑब्वियसली उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उनको क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी, मीन हैंग टू डेथ. ओके. नाउ गदर मूवमेंट. Ghadar movement. During the period of First World War, the revolutionary work against the British government got a momentum. Yes, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी हमारे वर्ल्ड में, तो जब जो रिवोल्यूशनरी वर्क था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये कैसा हो गया, मतलब इसको एक मोमेंटम मिल गया था. The revolutionaries felt that transfer of power can be brought into India with the help of enemies of the British, and in this attempt help of Indian soldier can also be taken. यस, अब जो रिवोल्यूशनरी से उन लोगों को क्या लग रहा था, द रिवोल्यूशनरीज फेल्ट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, तो ये क्या लेकर आएगा, मतलब ये एक मतलब ये इंडिया में आ जाएगा, और इसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, जो एनिमीज है, जो एनिमीज कौन थे हमारे, ब्रिटिश, है ना, तो इन दिस अटेम्प्ट हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर, मतलब ये चीज़ों में वो किसकी हेल्प लेंगे, डिफीट करने के लिए जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प लेंगे. To take advantage of this opportunity, revolutionary organizations were set up. Gadar is one such important organization. Yes, फिर मतलब इस तरीके से हेल्प लेने के लिए, ये चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए, जो रिवोल्यूशनरी जो थे, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, उसका नेम था गदर. ओके. द इंडियन लिविंग इन अमेरिका एंड कनाडा एस्टैब्लिश द गदर ऑर्गेनाइजेशन. यस, तो मतलब देखो ये जो था, तो कैसे थे, मतलब जैसे भी अदर कंट्री में हमारी कंट्री के लोग रह रहे हैं ना, तो वो जो मतलब मिलिट्री में है, तो वो उनसे हेल्प लेंगे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए. ओके. तो जैसे यहाँ पे जो इंडियन लिविंग्स आ रही है अमेरिका, मतलब जैसे यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में इंडियन पीपल्स रह रहे हैं, राइट, तो उन लोगों ने क्या स्टैब्लिश किया था, गदर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था. लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव, खानकोजे एक्सेट्रा. These revolutionaries were the important leader of the organization. अब ये जो गदर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, राइट, तो इसके ये सब क्या थे, मेन
लीडर्स थे, लाला हरदयाल, भाई परमानंद और पांडुरंग, ये सब क्या थे, इसके मेन लीडर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, गदर ऑर्गेनाइजेशन के। द वर्ड गदर मीन्स रिवॉल्ट। अब ये जो वर्ड है गदर, तो इसका मीनिंग क्या है, रिवॉल्ट, फाइट, ओके। गदर वॉज अ जर्नल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्टेड एज इट्स माउथ पीस। यस, अब ये जो गदर है, ये क्या है, एक जर्नल है, ओके। गदर वॉज द जर्नल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक, गदर क्या है, एक जर्नल है, दैट एक्टेड एट इट्स माउथ पीस। तो थ्रू दिस जर्नल इफर्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेयर पॉइंटेड आउट। अब ये जर्नल के थ्रू लोग क्या करते थे, जो जो इफर्ट्स थे ब्रिटिश रूल के, है ना, तो वो दिखाते थे, पॉइंट आउट करते थे। इट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेयरिंग डीड्स ऑफ रिवोल्यूशनरी, और उसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन देते थे किसके बारे में, जो डेयरिंग डीड्स, मतलब जो डेयरिंग काम किए हैं जो रिवोल्यूशनरी से हमारी कंट्री में, उन लोगों ने, वो भी वो दिखाते थे। In this way, love for the nation and armed rebellion was the message given through the journal Gadar into the Indian. अब इसकी वजह से, मतलब ये वे की वजह से क्या होता था, जो हमारे नेशन के लिए जो हमारा लव है, अफेक्शन है, राइट, और जो आर्म रिबेलियन के थ्रू जो मैसेज दिया जाता था जर्नल के थ्रू, मतलब वो जर्नल के थ्रू, जो गदर टू द लीडर। The leader of the Gadar organization decided to take advantage of this war like situation. यह सब जो गदर ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे, वो लोग क्या चाहते थे, क्या वो ये सारी सिचुएशन का क्या ले, एडवांटेज लें, और मतलब जो वॉर हुई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वो और ये सिचुएशन का वो फायदा लेना चाहते थे, ओके। सो दे थ्रू आउट अ प्लान ऑफ रिवॉल्ट इन पंजाब अगेंस्ट ब्रिटिश। फिर उन लोगों ने क्या सोचा, वही टाइम पे, मतलब एडवांटेज कैसे लेना है उनको, कैसे लिया उन लोगों ने पंजाब में एक प्लान किया, मतलब उन्होंने पंजाब में क्या प्लान किया कि वो वहाँ पे रिवॉल्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। They persuaded the Indian soldier in British army to join in their revolt. Yes. So what they were doing means, जो गदर ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स थे, तो वो क्या करते थे, परसुएट करते थे इंडियन सोल्जर्स को टू ज्वाइन विद देम इन दिस रिवॉल्ट। वो उनको ज्वाइन करने के लिए इस रिवॉल्ट में बोलते थे। It was decided that Raj Bihari Bose and Vishnu Ganesh Pingle should lead the revolt. अब वो लोग क्या चाहते थे, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था ये रिवॉल्ट में, कि जो राज बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, लीड पोजीशन पे रहेंगे रिवॉल्ट में। बट ड्यू टू treasury the British tries out the plan। लेकिन देखो, मतलब बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और सब रीजंस, ये जो उनका प्लान था वो ब्रिटिश को पता चल गया था। पिंगले फेल इनटू द हैंड ऑफ द पुलिस, ही वाज हैंग टू डेथ। यस, तो पिंगले जो थे वो अरेस्ट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, और ही वाज हैंग बाय द ब्रिटिश। एंड राज बिहारी बोस escape सक्सेसफुली, और वहां से राज बिहारी बोस जो थे वो escape हो गए थे, भाग गए थे। ही वेंट टू जापान एंड कंटिन्यू हिज रिवोल्यूशनरी वर्क। और वो कहाँ चले गए, अब यहाँ से जापान चले गए थे, और वहां पर उन्होंने अपना जो रिवोल्यूशनरी का वर्क था वो कंटिन्यू किया था। The revolutionary movement was active in other countries during this period of war. Yes, अब ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, फिर हमारी कंट्री में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे स्टार्ट हुआ था, अलग अलग प्रोविंसेस पे स्टार्ट हुआ था। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज एक्टिव इन अदर कंट्रीज, मतलब ये जो मूवमेंट था ये अदर कंट्रीज में भी एक्टिव हो गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम, ओके। द Berlin, Virendranath Chattopadhyay, Bhupen Dutta, and Hardiyar prepare an anti-British plan in cooperation with the German foreign minister. Yes, अब बर्लिन में क्या किया था, जो वीरेंद्र नाथ एंड भूपेन दत्ता,
एंड द लास्ट वन हरदियार, इन लोगों ने एक एंटी ब्रिटिश प्लान सेट किया था, प्रिपेयर किया था, और वो भी किसकी हेल्प के साथ, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे उनके कॉपरेशन के साथ। In 1915, Mahendra Pratap Barkatullah and Ubaidullah Sindhi established provisional government of Free India in Kabul. Yes, फिर after that, Mahendra Pratap and Barkatullah and Ubaidullah Singh, right? तो these three person had established provisional government. इन लोगों ने क्या establish किया, provisional government start किया था of Free India in Kabul. Now Kakori conspiracy. The subversive measure of government could not put an end of the revolutionary movement. Yes. अब दिस ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, बहुत सारी स्टेप्स ऐसे फॉलो करे थे जिससे वो क्या चाहते थे, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था हमारी कंट्री में वो क्या कर सके, उसको एंड कर सके, उसको स्टॉप कर सके, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। सो आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, मेनी यंगस्टर गॉट डाइवर्टेड टू रिवोल्यूशनरी वेज। अब देखो जो मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया था, सस्पेंड हो गया था, राइट। महात्मा गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो वो टाइम पे जो मेंबर्स उनके मूवमेंट में थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे जो यंगस्टर्स, तो वो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहे थे, वो ये रिवोल्यूशनरी वे में डाइवर्ट हो रहे थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सहगल एंड सच अदर रिवोल्यूशनरीज केम टुगेदर। अब वहां से इसे ये जो पर्सन दिए हुए आप लोग यहाँ पे जो नेम दिए हुए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रताप बिस्मिल, योगेश, तो ये सब कहाँ थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे, राइट। लेकिन ये सब अब कहाँ पर आ गए थे, दूसरे मतलब जो मूवमेंट चल रहा था एट दैट टाइम वहां पर, तो उसमें आ गए थे। ओके, came together on 9th August 1925. They looted the government treasury that were carried in a train near Kakori railway station in Uttar Pradesh. Yes. So ये सब एक मतलब ये सब ने मिलकर एक यूनिटी फॉर्म किया, और यूनिटी फॉर्म करने के बाद इन लोगों ने एक प्लान किया, और वो प्लान क्या था, ऑन 9th अगस्त 1925 को उन लोगों ने ये प्लान किया था कि वो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी की, मतलब एक ट्रेन में जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है, खजाना है, वो पास आउट हो रहा है, राइट। कहाँ से, नियर काकोरी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से, तो उसको क्या करेंगे, लूट लेंगे। ओके, सो दिस इज नोन एज द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। और ये जो उनका जो ये प्लान था, और ये जो उन्होंने मतलब प्लान किया था, क्या वो क्या करेंगे, ब्रिटिश ट्रेजर को लूट लेंगे, तो लूट लिए थे उन लोगों ने। तो ये इंसिडेंट्स को क्या क्या बोला जाता था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोलते थे। ओके, so by taking immediate action, the government arrested the revolutionaries and put them into prison. And obviously जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला ये सब के बारे में, मतलब obviously जब उनका ट्रेजर जो रिवोल्यूशनरीज उन लोगों ने क्या किया था, लूट लिया था, राइट। सो व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिड, दे हैड टेकन अ इमीडिएट एक्शन। उन लोगों ने एट द टाइम बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लिया, और जितने भी रिवोल्यूशनरीज वहाँ पे उनको मिले उन सबको क्या कर दिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। दे वी आर पुट अंडर ट्रायल। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी वेयर, यस, फिर वो सबको उन्होंने एज ए प्रिजन रख अरेस्ट किया। यस, सो जो अदर रिवोल्यूशनरीज थे, राइट, दे वे पुट अंडर ट्रायल, मतलब वो सबको तो ट्रायल में ले लिया था, जिनको अरेस्ट किया गया था, राइट, आफ्टर लूटेड द गवर्नमेंट रीजन। सो अदर जो रिवोल्यूशनरीज लाइक अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी वेयर हैंग, मतलब ये सारे पर्सन को भी उन लोगों ने इम्प्रीजमेंट मतलब फांसी की सजा सुना दी थी, एंड दे ऑल वेयर हैंग एट दैट टाइम, मतलब वही टाइम पे उनको फांसी दे दी गई थी। बट चंद्रशेखर आज़ाद मैनेज टू एस्केप, लेकिन मतलब फॉर्चुनेटली उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद वो वहाँ से क्या हो गए, स्केप हो गए, भाग गए थे। नाउ नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द यंग The young men, influenced by socialist ideas, decided to set up a nationwide revolution organization. Yes, now here the young men influenced by socialist ideas, मतलब जो भी socialist ideas वो टाइम पे दी जा रही थी by the revolutionaries, right? तो उससे क्या होता है, जो young men थे वो बहुत ही ज़्यादा influence हो रहे थे, and what they decided to set up a nationwide revolutionary. वो सब ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, nationwide revolutionary organization set up करेंगे। Prominent among them were Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, etc.
अब वो सब में कौन से पर्सन से प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और ये सारे पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे. ऑल दिस रिवोल्यूशनरीज वेयर सेक्युलर इन देयर थॉट. अब ये जो सारे रिवोल्यूशनरीज थे ये क्या थे, सेक्युलर थे इन देयर थॉट. ओके, सो इन 1928 इन द मीटिंग हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला around in Delhi, this young man established the organization called Hindustan Socialist or Republic Association. ओके, सो यह इन 1928 में क्या होता है, एक मीटिंग हेल्ड की गई थी कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड पर. ओके, दिल्ली में, मतलब फिरोज शाह कोटला के प्लेस पे दिल्ली में. तो वहाँ पे यंग मैन जो थे उन लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया था, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नेम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ओके, द The objective behind the establishment of this organization was to free India from British exploitation. Yes. अब जो ऑब्जेक्टिव थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो उसके पीछे के उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्वियसली फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश, जो ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन चल रहा था हमारी कंट्री में, तो उससे हमारी कंट्री को क्या दिलवाना था, फ्री करवाना था. It also wanted to overthrow the unjust socio-economic system which exploited the farmer and workers. और प्लस वो क्या चाहते थे, जो अनजस्ट हो रहा था सोशो और इकोनॉमिक सिस्टम में, जो एक्सप्लोर किए जा रहे थे, जो फार्मर्स को एक्सप्लोर किया जाता था, वर्कर्स को एक्सप्लोर किया जाता था, तो उसके अगेंस्ट में भी वो मतलब उनके अनजस्ट को भी वो हटाना चाहते थे, उनके साथ जो अनजस्टिस होता था उसे भी हटाना चाहते थे थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थ्रू. Bhagat Singh gave importance to creation of a social society based on social justice and equality. अब भगत सिंह जो थे वो क्या थे, मतलब वो इम्पोर्टेंस देते थे किस क्रिएशन, कौन से क्रिएशन को, जो सोसाइटी बेस पर होते थे, जैसे कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बेस पे जो चीज़ें होती थी, तो उन सबको वो इम्पोर्टेंस देते थे. The work of gathering arms and execution of programs was entrusted to a separate wing of the organization. Yep. अब जो वर्क था, द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स मतलब हथियार को जमा करना, और फिर जो प्रोग्राम्स है वो सेट करना, सो वॉज इंटरेस्टेड टू सेपरेट विंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो किसका हैंडवर्क था, किसको अंडर में दिया गया था, टू अ सेपरेट विंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दिस विंग वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. मतलब देखो ये जो सारा वर्क जो जिसके अंडर में था, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, लाइक मीन्स द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज, मीन्स द नेम ऑफ दैट विंग वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, राइट. एंड चंद्रशेखर आज़ाद वाज द चीफ ऑफ दिस विंग. मतलब ये विंग में जो हेड थे, जो चीफ थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद थे. ओके, members of this organization carried out many revolutionary activities. yes, अब जो members इसमें belong करते थे, ये organization में belong करते थे, so they were carried out so many revolutionary activity. मतलब उन्होंने बहुत सारी क्या की थी, revolutionary activity start की थी. okay, Bhagat Singh and Rajguru fired bullet and killed an officer named Saunders in order to avenge the death of Lala Lajpat Rai. Yes, अब here Bhagat Singh and Rajguru, right? What he did, they fired bullet and killed officers, killed British officer whose name was Sounder. Okay, तो उन्होंने क्या किया, फायर किया, और किसको, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको उन्होंने किल कर दिया था. ओके, सो वाई उन्होंने ऐसा क्यों किया था, बिकॉज टू टेक रिवेंज फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. जैसे लाला लाजपत राय को उन्होंने डेड मार दिया था, तो उसका रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ये किया था. ओके, द ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 bills in the Central Legislative Assembly curtailing civil rights. To protest it, the Bhagat Singh and Bhatukeshwar Datta threw bomb in the Central Legislative Assembly. Yes. Now the British government had introduced 2 bill. अब British government ने क्या किया, 2 bill introduce किया था Central Legislative Assembly में. Okay. So to protest it, मतलब obviously इसको protest करने के लिए जो भगत सिंह और भातुकेश्वर दत्ता है, तो इन लोगों ने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सेंटर था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उन्होंने वहाँ पर बॉम्ब थ्रू कर दिया था. ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली रेडेड द सेंटर ऑफ हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। यस, अब जब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली ये सब के बारे में, तो उन्होंने एट दैट टाइम इमीडिएटली वहाँ पे जाके उनके जो सेंटर था, सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो सेंटर था, है ना, तो वहाँ पे जाके उन्होंने रेड डाल दी थी। थ्रू इट द पुलिस ऑब्टेन्ड क्लू रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ सौंदर। और वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को क्या मिला? क्लू मिला। किससे रिलेटेड? सौंदर, जिनको किल किया था। किसने किल किया था? भगत सिंह एंड राजगुरु ने किया था, राइट। तो उनसे रिलेटेड उनको वहाँ पे क्लू मिले थे। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रिवोल्यूशनरीज, दे वेयर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। यस, अब गवर्नमेंट को जब क्लू मिल गया था वहाँ पर, तो उन लोगों ने क्या किया, जो रिवोल्यूशनरीज थी, तो उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। On 23rd March 1931, Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev were hanged in the Lahore jail. Yes, so on 23rd March 1931, Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev, ये तीनों को उन लोगों ने अरेस्ट तो कर लिया था पहले से, राइट, बट दे वेर हैंग इन द लाहौर जेल। इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। कहाँ पे? एंड द लाहौर जेल। बट टिल द एंड चंद्रशेखर आजाद डिड नॉट फॉल इनटू हैंड ऑफ द पुलिस। लेकिन स्टिल चंद्रशेखर आजाद वो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब हाथ में नहीं पहुंचे थे, नॉट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, और ब्रिटिश पुलिस। लेटर ही डाइड इन एन एनकाउंटर विद पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। लेकिन बट आफ्टर सम टाइम व्हाट मीन्स ही व्हाट डाइड, वो क्या हो गए थे? मर गए थे। इन एन एनकाउंटर, एनकाउंटर में, जो कि कहाँ पे किया गया था? अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में किया गया था। ओके।